Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. So, आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा इन योर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, दैट इज CSMA. ठीक है, सो CSMA बेसिकली आपके दो टाइप के हैं कोर्स में, दैट इज वन इज योर CSMA CD एंड वन इज योर CSMA CA. So CD is basically for your collision detection. ठीक है, अलोहा में क्या केस हमने पढ़ा था? अलोहा when we studied अलोहा, so we saw that first was your pure अलोहा जहाँ पे collisions बहुत ज्यादा थे. Then second was your slotted aloha where collisions were there but less as compared to pure aloha, but still a high probability of collision was there. So what happened was कि carrier sense multiple access method was introduced, that is CSMA. ठीक है, so what happens here is basically कि suppose you have two stations. ठीक है, this is your station A and this is your station B. Okay, so what will happen is what they will do, this is the channel through, this is the medium through which they are linked. Okay, this is the medium. What will happen, channel station A will send a signal. ठीक है, what it will happen is it will check कि आपका जो ये channel है whether it is collision, whether it is free or not. Free मतलब कि if any other station is sending any other message or is using this channel, so what will happen is it will be busy. ये आपका जो channel होगा वो busy हो जाएगा. कब busy होगा? When your station B, suppose A ने एक signal भेजा, ठीक है, A sends a signal to sense करने के लिए whether this carrier, this channel is free or not. What will happen is it will send a signal and it will see that okay, I am not getting any reply back to me. This means that my sensing that I have done is my channel is free. So what will happen? It will start sending the message. Message will start traveling. But suppose this happened at t0. What happened at t equal to 0? At t equal to 0, A ने एक message भेजा and A realized that okay, the channel is free, I can send the message. Now at t, suppose at t equal to 0 only, B ने भी message भेजा. Now B को भी चैनल क्या लगेगा? फ्री लगेगा. Why? Because t equal to 0 पे इसने जब मैसेज भेजा तो इसको कोई रिप्लाई नहीं मिला, so he thought this channel is free. B t equal to 0 पे B ने भेजा, उसको भी कोई रिप्लाई नहीं मिला, उसने सोचा ठीक है चैनल सेंस नहीं कर रहा कुछ भी, मतलब कि चैनल फ्री है. t equal to 1 पे दोनों ने मैसेज भेजना स्टार्ट करा. अब at somewhere in the middle what will happen? A collision will happen. So this is basically, ये आपका है कि ये आपके CSMA इस चीज को कैसे वर्क करेगा, कैसे चीज को ठीक करेगा. ओके, सो इफ यू सी द थ्योरी, this method was developed to decrease the chances of collisions when two or more stations start sending their signals over the data link layer. Carrier sense multiple access requires that each station first check the state of the medium. ठीक है, so medium आपका वही channel हो गया. So what they are saying, what a carrier sense requires is that each station, before sending the message, before sending whatever data it has to send, it should first check whether the medium that you are sending, you are using is free or not. So in other words, CSMA is based on the principle sense before transmit or listen before talk. ठीक है, CSMA can reduce the possibility of collision but it cannot eliminate it. ठीक है, ये बात क्लियर हुई. CSMA में आपका जो है एक्नॉलेजमेंट का प्रोसेस, जो आप CSMA CD पढ़ोगे उसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है. ठीक है, अब कैसे आएगा? सी, यहाँ पे देखो आप, ये आपके 4 स्टेशन है A, B, C and D. सो यहाँ पे क्या हुआ? एट टाइम T1 व्हाट हैपेंड कि आपका ये आपका टाइम लाइन है, टाइम लाइन बेसिकली. ठीक है, टाइम लाइन है. अब यहाँ पे उसने मैसेज भेजना स्टार्ट किया. ओके, यहाँ पे उसने मैसेज भेजना स्टार्ट किया. बी ने यहाँ पे सेंस किया, बी सेंस्ड हियर कि ओके यहाँ पे मतलब कि अब यहाँ पे मैसेज ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा है. सी ने यहाँ पे सेंस किया एंड डी ने यहाँ पे सेंस किया. सो वल्नरेबल टाइम किसके इक्वल हो गया? वल्नरेबल टाइम इक्वल हो जाता है प्रोपगेशन टाइम के. सो व्हाट यहाँ पे वल्नरेबल टाइम, अलोहा में वल्नरेबल टाइम किसके इक्वल था? अगर मैं प्योर अलोहा की बात करूं तो वल्नरेबल टाइम वाज इक्वल टू
2 into TFR, ma'am. Yeah, correct. 2 into TFR. TFR is frame transmission time. Okay. Slotted ALOHA में vulnerable time किसके equal था? Only TFR, ma'am. Only TFR. That is frame transmission time. But आपके CSMA में vulnerable time किसके equal है? Propagation time के. ठीक है, ये चीज यहाँ पे याद रखना. देन नेक्स्ट आपके आते हैं CSMA में आते हैं आपके परसिस्टेंस मेथड्स. परसिस्टेंट मेथड्स बेसिकली 3 डिफरेंट मेथड्स हैं आपके कि अगर आपकी जो प्रोबेबिलिटी कितनी है आपके चैनल को फ्री रखने की और आपके कोलिजन को चेक करने की. ठीक है, सो अब इसमें सबसे पहला मेथड है वन परसिस्टेंट. सो इसमें क्या है, वन परसिस्टेंट मेथड जो है वो सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है. इन दिस मेथड आफ्टर द स्टेशन फाइंड्स द लाइन आइडल. अगर आप ये इमेज देखो यहाँ पे, इफ यू सी दिस इमेज, यहाँ पे क्या है, ये आपका चैनल है. ठीक है, दिस लाइन, स्ट्रेट लाइन इज योर चैनल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, this is basically, this block represents that some activity is going on this channel and it is busy. ठीक है, so what is happening, यहाँ पे ये आपका पूरा एक सिंगल लाइन एक चैनल है and the presence of block, this block is representing that your channel is busy. मतलब कुछ काम आपके चैनल पे हो रहा है, somebody is sending some sort of data. So one persistent method क्या करता है कि it will continuously send the signals. जो भी आपका स्टेशन है जिसको भी आपका डेटा ट्रांसमिट करना है, what it will do, it will continuously transmit the signals कि चेक करने के लिए कि मेरा चैनल आइडल है या बिजी है. ठीक है, कंटिन्यूसली से सेंड किया और जैसे ही एट द पॉइंट इमीडिएटली जहां पे उसे मिला कि ओके माय चैनल इज आइडल, तुरंत इमीडिएटली वो अपना फ्रेम सेंड करना स्टार्ट कर देगा. That is with the probability 1. ठीक है, so what they are writing in this method, after the station finds the line idle, it sends its frame immediately with probability 1. Probability 1 है, इसके लिए इसे 1 persistent कहा जाता है. This method has the highest chance of collision because 2 or more stations may find the line idle and send their frames immediately. क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पे कि suppose you have 2 channels. ठीक है, 2 channels हैं आपके पास and this is where your channel is busy. This is where your channel is busy. अब ये A और B, A and B दोनों continuously sense करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या channel free है, क्या medium free है कि नहीं. And at this point of time, जैसे ही इन्होंने sense किया A and B, दोनों ने क्या sense किया, दोनों will find that this channel is what? Idle. As soon as they will find it idle, they both will send their frames. And क्या result होगा फिर? रिजल्ट हो जाएगा कोलिजन. क्लियर हुई वाली पॉइंट, क्लियर हुआ इतना? यस मैम. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, व्हाट इज हैपनिंग इज कि आपका जो भी चैनल है वो सपोज, अगर देखो कुछ भी डाउट हो ना तो प्लीज पूछ लेना, कोई भी वो मत रखना कि समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा हो तो प्लीज पूछ लो एक बार. ठीक है, सो इसमें क्या कोलिजन की क्या दिक्कत क्या है, व्हाई इज एक मिनट. So what is the problem over here? यहाँ पे प्रॉब्लम जो आ रही है वो ये आ रही है कि ठीक है, आपने कंटिन्यूसली आप सेंस कर रहे हो कि आपका चैनल बिजी है, फ्री है, कंटिन्यूसली आपने सेंस किया और जैसे ही आपको इस पॉइंट पे पता लगा, आपने जैसे ही सेंस किया, यू फाउंड दैट द चैनल इज आइडल. द ओनली प्रॉब्लम हियर इज दैट कि 2 और मोर स्टेशंस, वन परसिस्टेंट में ये प्रॉब्लम है कि कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आउट ऑफ द अदर मेथड्स. व्हाई? बिकॉज इट मे बी अ पॉसिबिलिटी कि 2 स्टेशंस एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अपने इस सिग्नल से अपने चैनल को सेंस कर रहे हो और हो सकता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम में दोनों ने अपना सिग्नल सेंड किया. एंड अगर दोनों ने अपना सिग्नल सेंड किया है, सो दोनों को क्या मिलेगा, दोनों को पता लगेगा कि आइडल है हमारा चैनल. सो what both will do, both will start sending these signals. जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि यहाँ पे अगर आपके पास 2 स्टेशंस हैं, these are your 2 stations, this is your A and this is your B. So what will happen is, suppose t equal to 0 पे दोनों ने ही एक सेंस करके अपना सेंसिंग पॉइंट स्टार्ट किया चेक करने के लिए कि क्या चैनल आइडल है कि नहीं, एंड बोथ ऑफ देम विल सी दैट द चैनल इज व्हाट आइडल. क्यों? क्योंकि t इक्वल टू 0 पे कोई भी चैनल जो है वो अपना डेटा ट्रांसमिट नहीं कर रहा. सो व्हाट विल हैपन, अब A जो है अपना एट t इक्वल टू 1 A विल स्टार्ट सेंडिंग द मैसेज, एंड सिमिलरली t इक्वल टू 1 पे B विल आल्सो स्टार्ट सेंडिंग द मैसेज बिकॉज B के अकॉर्डिंग भी चैनल फ्री था और A के अकॉर्डिंग भी चैनल फ्री था. बट व्हेन दे विल सेंड द मैसेज at this point collision will happen because they both have started sending at the same time. So this is what is your one persistent.
कि एक सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे both the channels found that both the stations found the channels idle and they started sending the message. क्लियर हो गया वाला पॉइंट? सो ये इसका फ्लो चार्ट है कि चैनल था, फिर सेंस किया, चैनल आइडल मिला तो स्टेशन ने ट्रांसमिट कर दिया, अगर चैनल बिजी मिला तो फिर दोबारा से सेंसिंग करेगा वो कि क्या चैनल फ्री है कि नहीं है, अगर फ्री नहीं है तो दोबारा से सेंसिंग करेगा और फ्री है तो स्टेशन ट्रांसमिट कर देगा। ये वाला मेथड क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। फिर नेक्स्ट है आपका नॉन परसिस्टेंट। अब नॉन परसिस्टेंट में क्या है? इन द नॉन परसिस्टेंट मेथड स्टेशन दैट हैज अ फ्रेम टू सेंड सेंसेस द लाइन। अगर लाइन आइडल है so it will send the message immediately. If line is not idle, it waits a random amount of time. कोई पर्टिकुलर फिक्स नहीं है कि इतने ही सेकंड्स के लिए वेट किया जाएगा, हर स्टेशन का अपना एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम होगा, ठीक है। The non-persistent approach reduces the chances of collision because it is unlikely that two or more stations will wait the same amount of time. Now यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो? Suppose you have any example में आप ले लो, एक आपके पास चैनल है A, सॉरी स्टेशन है A, एक स्टेशन है B एंड एक स्टेशन है C, ठीक है, 3 स्टेशन है आपके पास एंड ये एक चैनल से कनेक्टेड है। Now what happened is कि at this place यहाँ पे जो आपका चैनल है वो बिजी है, ठीक है, this is where the channel is busy. अब क्या हुआ? A ने एक सिग्नल भेजा, ठीक है, A ने सिग्नल भेजा एंड ही फाउंड दैट ओके चैनल बिजी है। B ने एक सिग्नल भेजा, B को पता लगा कि ओके चैनल बिजी है। C ने भी एट टाइम सेम टाइम की बात करो, सपोज t equal to 0, t equal to 0 पे A sent a signal to find whether the channel is busy or not. बिजी था। B ने भेजा t equal to 0 पे, बिजी था। C ने भी भेजा t equal to 0 पे और C को भी क्या पता लगा कि चैनल बिजी है। Now what will happen is, suppose अब हम पढ़ रहे हैं क्या? हम पढ़ रहे हैं नॉन परसिस्टेंट। नॉन परसिस्टेंट में व्हाट दे आर सेइंग कि अगर if suppose any station finds that a channel is busy, it will wait for what? It will wait for random amount of time. अब random amount of time क्या होगा? हर स्टेशन का मोस्टली जनरली अलग होगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं बोल रही हूँ रैंडम तो हर कोई स्टेशन एक रैंडम अमाउंट एक नंबर पिक करेगा। सपोज ए ने पिक किया 5 सेकंड्स का, बी ने पिक किया 4 सेकंड्स का और सी ने पिक किया 3 सेकंड्स का, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन नाउ? अब t इक्वल टू 0 पे जब भेजा गया तो पता लगा कि चैनल बिजी है। नाउ व्हाट विल हैपन? अब t इक्वल टू 3 पे सी दोबारा से सेंसिंग भेजेगा, करेक्ट। सी ने भेजा दोबारा से सेंसिंग एंड अभी भी चैनल बिजी था। सो व्हाट विल हैपन? अब सी कितने टाइम के बाद भेजेगा? अब सी अपना सेंसिंग जो है वो कब करेगा? 9 सेकंड के बाद में। 9 या 6? वो तो 3 सेकंड का रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम ले रहा है ना। वो उसने क्या किया, जब t इक्वल टू 0 पे उसे चैनल बिजी लगा, सो ही विल वेट फॉर 3 सेकंड्स। फिर उसने दोबारा से अपना 3 सेकंड्स पे दोबारा से उसने भेजा। अब 3 सेकंड्स पे उसे दोबारा से पता लगा कि चैनल बिजी है। सो नाउ ही विल नेक्स्ट सेंड द सिग्नल एट 6 सेकंड्स आफ्टर, मतलब आफ्टर 3 सेकंड्स। तो अब 6 सेकंड जो होगा, t इक्वल टू जब 6 होगी वैल्यू, तब वो दोबारा भेजेगा, ठीक है। तो ये चीज है। फिर अब t इक्वल टू 3 पे c ने भेजा रैंडम टाइम। अब t इक्वल टू 4 हुआ, जैसे ही t इक्वल टू 4 हुआ b ने भेजा। अब b को भी चैनल क्या पता लगा? बिजी है। सो अब t कितने टाइम, b कितने बाद भेजेगा? b भेजेगा 8 सेकंड पे, राइट। अब क्या हुआ? अब आपका चैनल हो गया फ्री। अब वो बिजी था, अब वो हो गया फ्री। तो t इक्वल टू 5 पे चैनल हो गया फ्री और t इक्वल टू 5 पे a ने अपना सिग्नल भेजा एंड a को पता लगा कि ओके चैनल तो खाली है। सो अब a जो है अपना स्टेशन अपने मैसेज ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा एंड जैसे a शुरू करेगा, सो a का ट्रांसमिट हो गया। अब सपोज t इक्वल टू 6 हुआ। नाउ t इक्वल टू 6, अब बताओ c को बिजी मिलेगा चैनल या आइडल मिलेगा चैनल? बिजी मिलेगा। अगेन बिजी मिलेगा, व्हाई? बिकॉज अब उसे ये नहीं पता कि कौन ट्रांसमिट कर रहा है मैसेज को, बट समबडी इज यूजिंग दिस चैनल। सो नाउ अगेन ही विल वेट फॉर 3 सेकंड्स, दैट इज अब 9th सेकंड पे वो अपना डेटा भेजेगा। सो दिस इज व्हाट विल हैपन इन नॉन परसिस्टेंट मेथड। हाँ, बहुत रेयर चांस होगा कि किसी भी 2 स्टेशन का रैंडम टाइम जो है वो सेम हो, बहुत ही रेयर, ठीक है, बहुत ही रेयर चांस होगा ये।
So this is what they are saying, because it is unlikely. Unlikely means that it is not very common that two or more stations will wait the same amount of time and retry to send simultaneously. However, this method reduces the efficiency of network. Why? Because the medium remains idle when there may be stations with frame to send. मतलब कि क्या हुआ, क्या कह रहे हैं वो, कि सपोज अब ए के पास भी डेटा है सेंड करने के लिए और बी के पास भी डेटा है सेंड करने के लिए. अब ए का टाइम है मैसेज भेजने का, मतलब रैंडम टाइम जो है, जैसे हम TR बोलते हैं, रैंडम टाइम है सपोज 9 सेकेंड्स का, ठीक है, और बी का रैंडम टाइम जो है सपोज वो है 15 सेकेंड्स का, अगर हम ये बोले. अब क्या हुआ, एट t इक्वल टू 0 ए ने भी, यहाँ पे आपका चैनल है बिजी, अब ए ने मैसेज सेंड किया, सिग्नल सॉरी, एंड बी ने सिग्नल सेंड किया, उन्हें क्या मिलेगा, उन्हें क्या रिप्लाई मिलेगा कि चैनल आपका बिजी है, ठीक है. अब ए कितने टाइम के लिए वेट कर रहा है, ए इज वेटिंग फॉर 9 सेकेंड्स एंड बी इज वेटिंग फॉर 15 सेकेंड्स. अब t0, अब सपोज t2 पे, t इक्वल टू 2 मतलब 2 सेकेंड्स बाद क्या हुआ, आपका चैनल क्या हो गया, फ्री, ठीक है. अब आपका जो मीडियम है वो फ्री हो गया. बट अब मुझे बताओ, क्या ए जो है वो t इक्वल टू 3 पे मैसेज सेंड करने लगेगा? नो मैम. No, it will wait up to 9 seconds and B will wait up to 15 seconds. तो t इक्वल टू 2 से लेके t इक्वल टू 9 तक आपका चैनल क्या रहा, आइडल, जबकि A और B दोनों को क्या थे, मैसेज सेंड करने थे. सो एफिशिएंसी क्या हो गई इसकी, रिड्यूस हो गई. So this is what they're saying, कि this method reduces the efficiency because medium will remain idle when there may be stations with frames to send. तो ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो व्हाट विल हैपनिंग इज, यहाँ पे आपके कुछ रैंडम चैनल्स मतलब हैं आपके, ठीक है, कुछ एक चैनल है और रैंडम स्टेशंस है. अब क्या हुआ, बिजी है आपका ये चैनल, ठीक है, सेंस किया, बिजी मिला, रैंडम टाइम के लिए वेट किया, फिर दोबारा सेंस किया, फिर यहाँ पे बिजी मिला, बट ये रैंडम टाइम जो है वो तो सेम ही रहेगा. अगर रैंडम टाइम 5 सेकेंड्स का है, सो दोबारा भी रैंडम टाइम 5 सेकेंड्स का ही रहेगा. सो यहाँ पे उसने सेंस किया कि बिजी मिला, सो अब वो पूरा 5 सेकेंड्स का वेट करेगा एंड 5 सेकेंड्स के बाद दोबारा चेक करेगा. दोबारा चेक किया, आइडल मिला, तो वो अब क्या करेगा, ट्रांसमिट कर देगा. सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि चैनल है, चैनल को चेक करा, अगर वो बिजी है, इफ इट इज बिजी, सो व्हाट विल हैपन, इट विल वेट रैंडमली. वेट रैंडमली मींस रैंडमली फॉर अमाउंट ऑफ टाइम, कोई रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वेट करेगा और उस टाइम के बाद दोबारा से एक सिग्नल भेजेगा चेक करने के लिए. अब अगर आइडल होगा तो स्टेशन ट्रांसमिट कर लेगा, अगर बिजी हुआ तो दोबारा उतने ही रैंडम टाइम के लिए वेट करेगा. सो ये आपको ध्यान रखना है कि हर स्टेशन का जो रैंडम टाइम होगा ना वो फिक्स होगा. अगर स्टेशन ए पहली बार में 5 सेकेंड्स का रैंडम टाइम ले रहा है, तो दूसरी बार में भी वो 5 सेकेंड्स का ही रैंडम टाइम लेगा. ठीक है, ये चीज ध्यान रखना. ओके, कोई डाउट इस पॉइंट में, नॉन परसिस्टेंट में कोई डाउट? नो मैम. सबको क्लियर है? यस मैम. वन परसिस्टेंट में क्या था, सेंस किया और जैसे ही फ्री मिला इमीडिएटली सेंड कर दिया. नॉन परसिस्टेंट में क्या है, रैंडम टाइम के लिए वेट करा जाएगा. अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका पी परसिस्टेंट. अब पी परसिस्टेंट में क्या है, द पी परसिस्टेंट मेथड इज यूज्ड इफ द चैनल हैज टाइम स्लॉट्स with the slot duration equal to or greater than the maximum propagation time. मतलब कि हर चैनल में एक टाइम स्लॉट होंगे और स्लॉट की वैल्यू कितनी होगी, जो स्लॉट्स कितने, मतलब अगर एक स्लॉट यहाँ पे है, सो नेक्स्ट स्लॉट कितने डायरेक्शन, किस ड्यूरेशन तक होगा, नेक्स्ट स्लॉट के बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा आपका मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम, इक्वल टू या ग्रेटर देन मैक्सिमम प्रोपोगेशन टाइम. कैसे, अब आप यहाँ देखो, अगर चलो पहले इसी लिखते हैं. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि पी परसिस्टेंट जो है अपना एडवांटेज है उसके पास कि वो क्या करता है, वो हमने दो स्ट्रेटजीज पढ़ी हैं, नॉन परसिस्टेंट और वन परसिस्टेंट, उनके जो एडवांटेज उन्हें कंबाइन करता है. क्या करता है, इट रिड्यूसेस द चांस ऑफ कोलिजन. ये आपको रिड्यूस करने वाला किस चीज का पार्ट है, ये आपका नॉन परसिस्टेंट का. एंड इम्प्रूव द एफिशिएंसी, ये आपका वन परसिस्टेंट है. कैसे, अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका चैनल, आपका जो स्टेशन है, अगर उसे लाइन जो आपकी चैनल है वो आइडल मिली, तो क्या करेगा, पी प्रोबेबिलिटी के साथ स्टेशन जो है वो फ्रेम सेंड करना शुरू करेगा. फिर क्यू प्रोबेबिलिटी, दैट इज 1 माइनस पी अमाउंट ऑफ टाइम के लिए स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट टाइम स्लॉट एंड चेक्स द लाइन अगेन. मतलब क्या हुआ
अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हाट हैपनिंग इज, ये आपका चैनल है बिजी, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका चैनल बिजी है, ठीक है, कंटिन्यूअसली सेंसिंग हो रही है। ये किस चीज का पार्ट है, कंटिन्यूअसली सेंसिंग होना? ये किस चीज पे हमने पढ़ा था कंटिन्यूअसली सेंसिंग करना? कौन से मेथड में पढ़ा है हमने अभी? नॉन 1%, करेक्ट, 1%. करेक्ट करेक्ट। 1% में क्या होता है कि 1% में वो कंटिन्यूअसली सेंस करता है, ठीक है। अब जैसे ही उसे यहाँ पे आइडल मिला, अब वो क्या करा, उसने ट्रांसमिट किया और उसने टाइम स्लॉट में वेट किया, इस टाइम स्लॉट का वेट किया। फिर अगर उसकी प्रोबेबिलिटी, जैसे आप यहाँ फ्लो चार्ट देखो, इफ यू सी द प्रोबेबिलिटी हियर, फ्लो चार्ट सॉरी, व्हाट इज हैपनिंग, चैनल है, अगर चैनल बिजी है तो दोबारा से सेंस करो, कंटिन्यूअसली सेंस करते रहो। जैसे ही चैनल आइडल मिला आपको, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू चेक फॉर द प्रोबेबिलिटी। क्या प्रोबेबिलिटी चेक करनी है आपको? आपको ये प्रोबेबिलिटी चेक करनी है कि जो आपका ये जो वैल्यू है, ये जो टाइम स्लॉट की जो वैल्यू है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो क्या है, वो आपकी ग्रेटर देन पी है या लेस देन इक्वल टू पी है। और पी क्या है यहाँ पे आपका? पी बेसिकली क्या हो गया आपका? मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम। सो आपको क्या चेक करना है, जो आपका टाइम स्लॉट है वो प्रोपगेशन टाइम से ज्यादा है या कम है। अगर लेस देन इक्वल टू प्रोपगेशन टाइम है तो स्टेशन ट्रांसमिट कर सकता है, अगर ग्रेटर देन प्रोपगेशन टाइम है तो फिर वो स्लॉट का वेट करेगा और फिर वो चैनल को देखेगा कि बिजी है, तो वो फिर क्या करेगा, अगर बिजी है तो वो ये सोचेगा कि कोलिजन अकर हो गया और दोबारा से स्टार्ट करेगा, और आइडल है अगर तो दोबारा से प्रोबेबिलिटी वाली चीज चेक करेगा। सो बेसिकली अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं एक, क्लियरली मतलब नॉन उसमें समझना हो तो बेसिकली ये है कि पी प्रोबेबिलिटी तक का वेट कर रहा है वो, और अगर चैनल फ्री है तो पी प्रोबेबिलिटी से वो स्टेशन को सेंड कर देगा, और अगर चैनल फ्री नहीं है तो वो 1 माइनस पी के लिए वेट करेगा। बेसिकली इतना ही है इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में, बट मैं एक बार और आपको देख के समझा देती हूँ एक बार एग्जाम्पल ढूंढ के। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, यहाँ पे आपका बिजी है ये, ठीक है, अगर मैं इसको हम दोबारा से एक्सप्लेन करें, सो यहाँ पे आपका बिजी है, तो इफ यू सी हियर व्हाट दे राइटिंग, कि अगर लाइन आइडल मिल जाती है, ठीक है, सपोज लाइन आइडल मिल गई, सो व्हाट विल हैपन, इट विल स्टार्ट सेंडिंग द फ्रेम विद प्रोबेबिलिटी फ्री। सो यहाँ पे भी क्या है, अगर लाइन आइडल है और आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है, लेस देन इक्वल टू पी है, सो व्हाट विल हैपन इज स्टेशन ट्रांसमिट करना शुरू कर देगा। बट अगर जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन पी, सो वो क्या वेट करेगा, वो टाइम स्लॉट का वेट करेगा। टाइम स्लॉट का वेट मतलब कि जब आपका नेक्स्ट टाइम स्लॉट बिगिन होगा वो तब आपका दोबारा से चेक करेगा। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, विद प्रोबेबिलिटी q दैट इज 1 माइनस p, स्टेशन वेट्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द टाइम स्लॉट। अगर मुझे एक बात बताओ, अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी p है, इफ समथिंग इज हैपनिंग एंड द हैपनिंग प्रोबेबिलिटी इज p, तो नॉन हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? अगर हम बेसिक प्रोबेबिलिटी के टर्म्स से बात करें, इफ आई एम सेइंग कि हेड आने की, अगर मैं टॉस कर रही हूँ कोई कॉइन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2, सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2. कैसे? 1 माइनस 1/2 करोगे, Yes, ma'am. है ना, यही करते हैं ना हम क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, या तो 0 होता है या 1 होता है, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी और 0 से कम नहीं होगी, यही तो बोलते हैं हम। Yes, तो अगर किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी p है तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? p minus 1. 1 माइनस p, Minus. Yes, ma'am. 1 माइनस p होगी, Yes, ma'am. राइट? इतना तो क्लियर है। Yes, ma'am. सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर आपका स्टेशन आइडल है, अगर चैनल आइडल है, सो स्टेशन क्या करेगा, स्टेशन सेंड करने लगेगा अपने फ्रेम को विद प्रोबेबिलिटी p, ठीक है। फिर विद प्रोबेबिलिटी q दैट इज 1 माइनस p, क्या करेगा स्टेशन वेट करेगा नेक्स्ट स्लॉट के बिगिनिंग का, और फिर वो लाइन को दोबारा चेक करेगा। सिमिलर यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अगर आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो p या लेस देन इक्वल टू p है,
तो आप ट्रांसमिट करना शुरू कर दोगे। बट अगर वो ग्रेटर देन पी हो जाए, ग्रेटर देन पी अगर हो गई, तो आप बिगिनिंग का वेट करोगे, मतलब कि इस बीच में टाइम स्लॉट्स के बीच में कोई ट्रांसमिशन नहीं होगा, बिगिनिंग में ही ट्रांसमिशन होगा, सिर्फ और सिर्फ बिगिनिंग ऑफ टाइम स्लॉट्स में ही ट्रांसमिशन होगा। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, अगर प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन पी है, सो यू विल वेट फॉर अ स्लॉट। जैसे ही आपको दोबारा से स्लॉट मिला, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दोबारा स्लॉट मिला, आप दोबारा से सेंस करोगे चैनल को, क्योंकि दिस मे बी अ पॉसिबिलिटी कि नेक्स्ट टाइम स्लॉट तक आपका चैनल क्या हो जाए, आपका चैनल हो जाए बिजी। सो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, अगर मैं आपको लेमैन में समझाऊं, कि फर्स्ट स्टेप इज आपको अपना चैनल चेक करना है। अगर आपका चैनल अगर बिजी है, सो आप कुछ नहीं, आप जस्ट वेट, ठीक है। सेकंड में क्या करो, बिजी अगर है तो यू हैव टू वेट अंटिल द टाइम इट बिकम्स आइडल। जैसे ही चैनल आपका क्या बना, चैनल हो गया आपका आइडल, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू चेक द प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब आपने प्रोबेबिलिटी चेक की, सो व्हाट यू विल डू, अगर प्रोबेबिलिटी चेक करने के बाद इफ यू फाइंड दैट इट इज लेस देन इक्वल टू पी, जो भी आपकी पी प्रोबेबिलिटी है आपकी, अगर वो लेस देन इक्वल टू पी है, आप ट्रांसमिट करना शुरू कर दो। बट अगर वो ग्रेटर देन पी है, अगर सॉरी उल्टा साइन लगा दिया मैंने, अगर लेस देन इक्वल टू पी है तो आप सेंड करना शुरू कर दो। बट अगर ग्रेटर देन पी है, जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी आपने निकाली, जो प्रोपगेशन टाइम बेसिकली आया आपका, अगर वो ग्रेटर देन पी है, सो व्हाट यू हैव टू डू, you have to wait for what, wait for next time slot, ठीक है। अब आपने वेट किया, सपोज जैसे ही आपका नेक्स्ट टाइम स्लॉट आपको मिला, अब नेक्स्ट टाइम स्लॉट के बिगिनिंग में व्हाट विल हैपन, व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू चेक अगेन फॉर योर चैनल, अगेन चैनल को चेक करो। अगर चैनल आइडल है, सो अगेन प्रोबेबिलिटी वाली कंडीशन लगा के ट्रांसमिट करो, अगर वो बिजी है तो फिर उसको आइडल होने तक वेट करो। सो इससे क्या होगा, इससे व्हाट विल हैपन इज दैट कि जो आपकी कोलिजन है, वो उसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाएगी। एक तो आप कंटिन्यूसली सेंस कर रहे हो, उसके बाद आप कब भेज रहे हो, जब तक आपकी बिगिनिंग ना हो टाइम स्लॉट की, बीच में आप कभी भी मैसेज सेंड नहीं करो। पी परसिस्टेंट में ये ध्यान रखना, पी परसिस्टेंट बेसिकली क्या कह रहे हैं आपको, पी परसिस्टेंट में आपके जो टाइम स्लॉट्स होंगे वो किस बेसिस पे बनते हैं, टाइम स्लॉट्स बनते हैं कि आपका जो मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम है, वो या तो जो आपके टाइम स्लॉट्स के बीच का जो ड्यूरेशन है वो मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम के बेसिस पे बनता है, या तो वो टाइम स्लॉट्स जो ड्यूरेशन है वो या तो ग्रेटर देन होगा या वो इक्वल टू होगा मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम के। और आपके दो स्ट्रैटेजीज हैं इसमें, पी प्रोबेबिलिटी का यूज होगा। अगर चैनल आइडल है तो पी प्रोबेबिलिटी के साथ स्टेशन अपना फ्रेम सेंड करना शुरू कर देगा, और अगर आइडल नहीं है, या मतलब या फिर आप किसी और, आप अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है पी दैट इज नॉट इक्वल, अगर वो ज्यादा है आपकी प्रोबेबिलिटी जो आपने मेंशन करी है, दैट इज दिस मच, जो आपका आउटकम है प्रोबेबिलिटी का, एक आपने इसमें पी एक टर्म है, ठीक है, पी आपने फिक्स कर दिया, आपने निकाली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद अगर लेस देन इक्वल टू पी आ रहा है, अगर ये प्रोबेबिलिटी जो आपने कैलकुलेट की है वो लेस देन इक्वल टू पी आ रही है, तो आप ट्रांसमिट करोगे। अगर वो ग्रेटर देन पी आ रही है तो आप वेट करोगे टाइम स्लॉट के लिए। दिस इज व्हाट द राइटिंग, प्रोबेबिलिटी आउटकम डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन। व्हाई, बिकॉज वो क्या है, वो है ग्रेटर देन पी। पी कोई भी वेरिएबल है बेसिकली जो आपने फिक्स किया है, जिसके बेसिस, मतलब पी को जनरली आप फिक्स करते हो प्रोपगेशन टाइम के बेसिस पे, क्योंकि टाइम स्लॉट से बीच का डिफरेंस प्रोपगेशन टाइम का है। So, आपको क्या पॉइंट ध्यान रखना है इसमें, द मेजर पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट कि जो आपके टाइम स्लॉट्स के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, वो है प्रोपगेशन टाइम से ज्यादा या इक्वल, और कोलिजन के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। प्रोबेबिलिटी पी से आप स्टेशन को फ्रेम, अपने स्टेशन जो है वो फ्रेम को सेंड कर रहा है, और प्रोबेबिलिटी क्यू से दैट इज 1 माइनस पी से वो वेट कर रहा है नेक्स्ट स्लॉट का। क्लियर हो गया? yes, ठीक है, Yes, ma'am. तो ये आपकी हो गई पी परसिस्टेंट मेथड। अब आपका आया कोलिजन डिटेक्शन, कि अब जो है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने सीएसएमए में देखा कि कोलिजन का हमने सेंसिंग भेजी और हमें पता लगा कि ठीक है, फ्री है तो हमें भेजना है, आइडल है तो मतलब आइडल है तो भेजना है, और बिजी है तो हमें भेजना नहीं है, ये हमें पता लगा। बट अब हमें ये कैसे पता लगेगा कि कोलिजन हुआ है कहीं पे, दिस इज द मेजर थिंग, क्योंकि अभी तक हम सीएसएमए क्या पढ़ रहे हैं, सीएसएमए में हमने पढ़ा एक स्टेशन था, उसने सिग्नल सेंड किया, उससे आइडल मिला अगर, तो दोनों भेजना शुरू कर देंगे। और अब यहाँ पे जो कोलिजन हुआ, इन्हें पता कैसे चलेगा ए और बी को कि कोलिजन हो गया है, राइट? ऑब्वियसली अगर मैं सिग्नल भेज रही हूँ, अगर मैं किसी ए पॉइंट पे हूँ और सामने वाला जो स्टूडेंट है या
जो भी है पर्सन वो बी पॉइंट पे। अब एट सपोज समवेयर बिटवीन ए एंड बी कहीं पे और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, और कहीं पे भी पॉइंट एफ पे सपोज एक कोलिजन हो गया। सो हाउ विल दिस ए एंड बी नो कि कोलिजन हो गया? और बीच में अगर कोई भी और जगह है, दैट इज सी और डी, कोई भी और पीपल है बीच में, पर्सन है, उन्हें कैसे पता लगेगा कि वो आगे अपना फ्रेम ट्रांसमिट ना करें क्योंकि कोलिजन हो चुका है? सो दिस इज व्हाई कोलिजन डिटेक्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आ गई कोलिजन डिटेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? ये दोबारा से एक्सप्लेन करो ये वाला पॉइंट। यस मैम, रिपीट। सी, क्या हुआ कि आपका एक चैनल है, ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है एंड यहाँ पे डी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। सो दीज आर योर स्टेशंस एंड ये आपका चैनल है। अब बेसिकली स्टेशंस का क्या काम होता है? स्टेशंस का काम होता है अपना जो डेटा है उसे ट्रांसमिट करना, ठीक है। अब t इक्वल टू 0 पे क्या हुआ, ए ने अपना एक सिग्नल भेजा, क्या चेक करने के लिए कि जो चैनल है वो आइडल है या नहीं। सेम डी ने भी एक अपना वो t इक्वल टू 0 पे सिग्नल भेजा चेक करने के लिए कि चैनल आइडल है कि नहीं। दोनों को चैनल क्या मिलेगा? आइडल, राइट? यस मैम। यस, है ना, आइडल मिला। दोनों ने अपना चैनल जो अपना डेटा है वो ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। सेम यहाँ से भी और सेम यहाँ से भी, ये भी चैनल अपना ट्रांसमिट कर रहा है और डी जो है वो भी अपना डेटा जो है वो ट्रांसमिट कर रहा है, ऐसे ये। अब मैम एट क्या द हुआ, सेम टाइम होगा ना मैम ये? हाँ हाँ जी, हाँ, वो दोनों सिग्नल भेजेंगे t इक्वल टू 0 पे। जैसे उन्हें पता लगा कि मेरा आइडल है, t इक्वल टू 1 पे वो दोनों ही अपना चैनल अपना डेटा स्टार्ट करना सेंड करना स्टार्ट कर देंगे। अब क्या हुआ यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कहीं मिडिल में कोलिजन हुआ, ठीक है। अब ये कैसे पता लगेगा? अब डी को तो ये है कि डेटा जो है वो सपोज डी का जो रिसीवर है वो है बी और ए का जो रिसीवर है वो है सी, ठीक है। अब डी को ये लग रहा है कि मैसेज जा रहा है बी को और सी को ये लग रहा है, वो ए को लग रहा है कि मैसेज जा रहा है सी को, बट नो बडी ईदर ऑफ देम, मतलब ए और डी में से किसी को नहीं पता कि यहाँ पे क्या हो गया, हमारा कोलिजन हो गया। अब ये कोलिजन हुआ सपोज t इक्वल टू 4 पे, ठीक है। नाउ एट t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 पे क्या हुआ, b को भी अपना एक डेटा भेजना है, बट ठीक है d को लगा कि चैनल बिजी है मैं नहीं भेज सकती। c को भी भेजा है डेटा, बट c को भी पता है कि ओके मेरा चैनल अभी थोड़ा बिजी है मैं नहीं भेज सकती। बट हाउ विल दिस कोलिजन बी इन्फॉर्म्ड, मतलब कि a और b और c और d चारों को ये कैसे बताया जाए कि कोलिजन अकर हो गया है? ए और डी से ये बोला जाए कि प्लीज स्टॉप सेंडिंग योर डेटा, और बी और सी से ये बोला जाए कि डेटा अभी मत भेजना, कोलिजन हो गया है। सो फॉर दिस CSMA CD was introduced, कोलिजन को डिटेक्ट करना, कि कैसे डिटेक्ट किया जाए कि कोलिजन हो गया है और कैसे बाकी चैनल्स को इन्फॉर्म किया जाए, बाकी स्टेशंस को इन्फॉर्म किया जाए कि प्लीज डू स्टॉप सेंडिंग द डेटा, देयर इज अ कोलिजन। अब ठीक, अब समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है। सो नाउ व्हाट इज देयर, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, दैट इज, ये फुल फॉर्म प्लीज ध्यान रखना, ठीक है, CSMA CD की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। सो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन ऑगमेंट्स द एल्गोरिथम टू हैंडल द कोलिजन, मतलब कि जो भी एल्गोरिथम है उसमें सर्टेन एडिशंस होते हैं और फिर ये बताया जाता है क्यों एडिशन क्यों करते हैं एल्गोरिथम में, इन ऑर्डर टू हैंडल द कोलिजन, जो भी कोलिजन अकर हुआ है उसको कैसे हैंडल करना है। सो उसके लिए हम जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम है उसमें हम कुछ एडिशन करेंगे। अब कैसे? व्हाट हैपेंस इज इन दिस मेथड अ स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम, ठीक है, कोई भी स्टेशन है वो क्या करता है, वो क्या सबसे पहले तो वही चेक करेगा सबसे पहले कि मीडियम इज बेसिकली चैनल, ठीक है। आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन इज सक्सेसफुल। अब क्या हुआ यहाँ पे, अर्लियर क्या हो रहा था CSMA जब हम पढ़ रहे थे कि भेजने से पहले भी चेक हो रहा था, राइट? यहाँ पे क्या हो रहा है, भेजने के बाद भी चेक हो रहा है। सो स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स द फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुल। अगर सक्सेसफुल हुआ है तो स्टेशन इज फिनिश्ड, इफ नॉट फ्रेम इज सेंट अगेन। बट अब ये स्टेशन को कैसे पता चलेगा कि ट्रांसमिशन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं? अब यहाँ पे आप देखो, ये आपका ट्रांसमिशन टाइम है T1, T4, T2, T3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी जस्ट ओपन द थ्योरी समझाने के लिए। और क्या
यहाँ पे आप देखो ए ने जो है, दिस इज योर ए, ठीक है, ए स्टार्टेड सेंडिंग द फ्रेम एट T1। T1 पे इफ यू नोटिस हियर, यहाँ पे आपका फ्रेम जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू हुआ, ठीक है। सो ये आपका टाइम हुआ T1 का, T1 की टाइम T1 है। T2 पे क्या हुआ, T2 पे व्हाट विल हैपन इज दैट C ने देखा कि चैनल क्या है, फ्री है, ठीक है। C को क्या पता लगा, C thought that okay the channel is free, so what will happen, what will C do, C क्या करेगा, C ने भी अपना चैनल जो है वो, अपना जो फ्रेम है वो सेंड करना स्टार्ट किया। अब यहाँ पे जैसे ही C2, अब यहाँ पे T2 पे तो कोई फ्रेम नहीं आया बिकॉज T2 पे समवॉट ओवरहेड यहाँ पे कहीं होगा आपका चैनल, आपका ये ए का फ्रेम, ठीक है। फिर फ्रेम आगे ट्रैवल होना शुरू हुआ, जैसे ही ट्रैवल होके वो यहाँ पे आया एट दिस प्लेस दैट इज T3, और C ने जो T3 पे अपना जैसे ही फ्रेम भेजा था, C को क्या पता लगा, C को पता लगा एट दिस प्लेस, यहाँ पे कोलिजन हुआ, बट यहाँ पे किसी को पता नहीं लगा, कोलिजन का पता लगा C को यहाँ पे कि ओके यहाँ पे अब मुझे इस मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आप ध्यान से देखो, A ने T1 पे फ्रेम स्टार्ट करा सेंड करना, और C ने T2 पे स्टार्ट किया सेंड करना। अब क्या हुआ, जो C है वो अपना इधर भी फ्रेम भेज रहा है और वो इधर भी फ्रेम भेज रहा है, ठीक है। मतलब कि C लेफ्ट डायरेक्शन में भी फ्रेम को सेंड कर रहा है और C राइट डायरेक्शन में भी फ्रेम को सेंड कर रहा है। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ पे तो फ्रेम ट्रांसफर हो गया D को, उसको D को भेजा था, उसने भेज दिया। यहाँ पे इधर या तो वो A को भेज रहा है या वो B को भेज रहा है, नोबडी नोज। अब जैसे ही क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ से फ्रेम आया इधर और यहाँ से फ्रेम गया इधर, सो यहाँ पे हो गया आपका कोलिजन, ठीक है। दिस इज वेयर द कोलिजन हैपेंड। अब क्या हुआ, ये कोलिजन की इंफॉर्मेशन C को कब मिली, C को मिली T3 पे। तो जैसे ही C को ये इंफॉर्मेशन मिली दैट कोलिजन हो गया है, सो C व्हाट विल डू, C विल अबॉर्ट दिस मिशन। अबॉर्ट मतलब C जो है वो अपने फ्रेम को ट्रांसमिट करना बंद कर देगा। और A को कब इंफॉर्मेशन मिली, A को ये कोलिजन की इंफॉर्मेशन मिली T4 पे। सो व्हाट विल डू, जैसे ही A को इंफॉर्मेशन मिली, A विल आल्सो स्टॉप ट्रांसफरिंग द डेटा एंड इट विल स्टॉप इट्स ट्रांसमिशन, ठीक है। ये बेसिकली वर्क है आपका। तो इसमें क्या बेसिक चीज क्या हो रही है कि A ने मैसेज भेजा इस डायरेक्शन में और C ने मैसेज भेजा इस लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों डायरेक्शन में C ने स्टार्ट किया मैसेज भेजना। अब C को ये नहीं, अब T1 पे A ने भेजा, T2 पे C ने भेजा, कोई प्रॉब्लम नहीं, भेज दिया, अलग अलग टाइम पीरियड में भेजा। एट समवेयर यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कोलिजन हुआ, सो इस कोलिजन की नॉलेज C को कब मिली, C को मिली T3 टाइम पे, और A को कब मिली, A को मिली T4 टाइम पे। सो दिस इज बेसिकली ये आपका है कोलिजन का डिटेक्शन। बट अब ये हुआ कैसे, ये हमें पढ़ना है कि ये हुआ कैसे। सो नाउ व्हाट यू हैव टू सी हियर, आप देखो एट टाइम T1, ये आपकी थ्योरी भी लिखी हुई है, एट टाइम T1 स्टेशन A ने एग्जीक्यूट किया अपना पर्सिस्टेंट प्रोसीजर, मतलब कि पर्सिस्टेंट प्रोसीजर मींस कि अपना चेक करना कि स्टेशन आइडल है कि नहीं, ठीक है, एंड स्टार्ट सेंडिंग द बिट्स ऑफ इट्स फ्रेम। ऑब्वियसली ये तो पता है आपको कि डेटा जो है वो बिट बाय बिट, फ्रेम बाय फ्रेम सेंड होता है, राइट, ये तो पता है ना आप लोगों को। Yes, ma'am. ठीक है, सो डेटा स्टार्ट हुआ सेंड होना। अब टाइम T2 पे क्या हुआ, स्टेशन C ने, अभी तक स्टेशन C को ये पता नहीं चला है कि A ने स्टार्ट करना सेंड कर दिया, क्योंकि उसे A की, क्योंकि ऑब्वियसली देखो ये इनकी टाइमलाइंस हैं, ये इनके स्टेशंस हैं, ये ऐसे ही तो सेंस करेंगे, ऐसे ही वो सेंसिंग अपने भेजेंगे, ऐसे ही सेंसिंग अपने चैनल को भेजेंगे वो। So now what will happen is, यहाँ पे if you see at this line, ये जो लाइन आप देख रहे हो, यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट इज T2, A का कोई भी फ्रेम अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. क्या अगर कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. ठीक है, अब A ने सपोज T1 पे जब मैसेज भेजा अपना, सो उसने अपने फ्रेम बाय फ्रेम सेंड करना शुरू किया। C को जब अपना मैसेज भेजना था, कुछ मैसेज था C के पास, he wants to send this. Now what will happen, T2 पे जब उसने सेंस किया अपना, तो उसको कोई भी फ्रेम कुछ भी नहीं मिला इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। So what he will do, he will send the message. उसको लगेगा कि चैनल मेरा फ्री है, कुछ कोई मैसेज कुछ भेज नहीं रहा, तो वो अपना मैसेज सेंड करना शुरू कर दे। Station C execute its persistent procedure and start sending the bits in its frame, which propagate both to the left and to the right. ठीक है, दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों में इसके बिट्स ट्रांसफर होना शुरू हो गए। स्टेशन C ने कोलिजन डिटेक्ट किया T3 पे,
दैट इज व्हाट आई वाज सेड। यहाँ पे सपोज यहाँ पे समवेयर कोलिजन डिटेक्ट हुआ और स्टेशन सी को डिटेक्ट हुआ एट टाइम T3। T3 पे जैसे ही सी को स्टेशन सी को पता लगा कि कोलिजन डिटेक्शन हुआ है, व्हाट इट विल डू, इट विल इमीडिएटली अबॉर्ट द ट्रांसमिशन। एंड सिमिलरली स्टेशन ए डिटेक्ट करेगा कब, T4 पे, जब उसे क्या मिलेगा, जब उसे यहाँ पे पता लगेगा कि ओके अब मुझे सी का एक फ्रेम मुझे मिला है, मतलब कि somebody else is sending something and there's a collision. So T4 पे उसे पता लगा, so what he will do, he will immediately abort the mission. अब A का ट्रांसमिशन टाइम कितना हुआ, T1 से T4 तक का, और C का ट्रांसमिशन टाइम कितना हुआ, T2 से T3 तक का। Why? Because T2 पे उसने स्टार्ट किया सेंड करना, और T3 पे जैसे उसे पता लगा कि कोलिजन हो रहा है, इट विल इमीडिएटली स्टॉप। सो ये इसका ट्रांसमिशन टाइम हुआ किसका, सी का। और ए का ट्रांसमिशन टाइम कितना हुआ, T1 पे सेंड किया स्टार्ट करना, और T4 पे पता लगा कि कोलिजन हो गया। सो दिस विल बी द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ ए। ये चीज क्लियर हो गई? Yes, ma'am. कोई डाउट इसमें? No. ठीक है। सो इन CSMA CD इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिटिंग स्टेशन, जो ट्रांसमिट कर रहा है, टू डिटेक्ट द कोलिजन। For detecting the collision, CSMA CD implements the following condition. अब क्या होता है इसमें, what condition जो है वो होता है transmission delay is greater than equal to 2 times your propagation delay। मतलब propagation delay जो है आपका, propagation delay basically क्या होता है, यहाँ से अगर आप किसी एक स्टेशन से आप किसी दूसरे स्टेशन पे भेज रहे हो, this is your propagation delay। So transmission delay क्या होता है, अगर collision detect करना है तो एक कंडीशन है जो CSMA CD इंप्लीमेंट करती है, वो क्या है कि जो ट्रांसमिशन टाइम होगा वो बेसिकली ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले के। 2 टाइम्स क्यों, एक तो यहाँ से फ्रेम सेंड हुआ और एक यहाँ से एक उसे एक्नॉलेजमेंट मिला, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया प्रोपगेशन टाइम। Yes, ma'am. दिस इज योर वन एंड दिस इज योर सेकंड। सो जो ये ट्रांसमिशन टाइम होना चाहिए बेसिकली वो क्या होना चाहिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले होना चाहिए। So according to this condition, each station must transmit the data packet of size whose transmission delay is at least twice as propagation delay. अगर डेटा साइज छोटा हुआ तो कोलिजन डिटेक्शन विल नॉट बी पॉसिबल। सो ये वाली चीज आप ध्यान रखना, CSMA CD में ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोपगेशन डिले। तो कभी भी आप फॉर्मूला सॉल्व करोगे तो TT विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TP इन केस ऑफ CSMA CD। ठीक है। अगर हम इसे ऐसे लगाएं, ये हमारे पास बेसिकली ये दिया हुआ है, TT इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ TP। TT का फॉर्मूला क्या है, ट्रांसमिशन टाइम का फॉर्मूला क्या है, डेटा साइज अपॉन Bandwidth, ma'am. बैंडविड्थ। तो डेटा साइज को मैं बोल सकती हूँ फ्रेम लेंथ, बोल सकते हैं Yes, ma'am. फ्रेम लेंथ अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू 2 टाइम्स TP क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन Speed, ma'am. स्पीड। ठीक है, तो या तो उसको डिस्टेंस या TP रहने दो। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेम लेंथ मुझे निकालना है कि अगर मुझे पैकेट अपना भेजना है, अगर इफ आई हैव टू सेंड माय डेटा इन CSMA CD तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। सो ये इसका फॉर्मूला है दैट फ्रेम लेंथ जो है वो या तो इक्वल होनी चाहिए 2 टाइम्स ऑफ प्रोपगेशन टाइम इनटू बैंडविड्थ। सो बेसिकली अगर मैं ट्रांसमिशन टाइम को ओपन फॉर्मूले को ओपन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रेम लेंथ मिलेगी। और फ्रेम लेंथ कितनी होनी चाहिए, वही वो बोल रहे हैं, frame length must be each station must transmit the data packet of size, मतलब कि frame length of size whose transmission delay is at least twice as your propagation delay। क्लियर हो गई वाली बात? Yes, ma'am. ठीक है, मैं कोई फॉर्म क्वेश्चन भी देखती हूँ, मुझे मिलेगा तो बताओ। अब let's try to understand the collision with the help condition of detecting collision with the help of example। Suppose 10 AM पे, ठीक है, आपके पास 4 स्टेशन है A, B, C, D। There are 4 stations and they are connected with the help of channel। Propagation delay आपका दिया हुआ है 1 hour का। ठीक, 10 AM पे चैनल A ने सेंस करना शुरू किया, सेंस किया उसने, उसको चैनल फ्री मिला, उसने ट्रांसमिशन स्टार्ट किया। सो अब एट टाइम 10:59 मतलब कि 11 o'clock से 1 मिनट पहले पैकेट कहाँ पहुंचने वाला है, पैकेट इज अबाउट टू रीच डेस्टिनेशन D। मतलब सपोज A को मैसेज भेजना है D को। अब ये मुझे बताओ व्हाई दिस 10:59 क्यों मेंशन किया उन्होंने स्पेशली, बिकॉज कितना टाइम है, प्रोपगेशन टाइम कितना है, 1 hour। Yes, ma'am.
प्रोपगेशन टाइम 1 आवर का मतलब कि 1 घंटा लगेगा उसे ए से पूरा अपना डेस्टिनेशन कवर करने में, करेक्ट? ठीक है। Yes, ma'am. तो अब क्या हुआ, एट टाइम 10:59 पैकेट डी पे पहुंचा नहीं है, पहुंचने वाला है, ठीक है। दिस मीन्स दैट क्योंकि पूरा 1 घंटा चाहिए उसे डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए, और हम बात कर रहे हैं 1 मिनट पहले की। सो बिफोर 1 मिनट सपोज पैकेट है आपका यहाँ पे समवॉट ओवर हियर। अब एट दिस टाइम मतलब 10:59 पे व्हाट हैपेंड, डी ने कैरियर को सेंस किया, डी को मिला, डी ने कैरियर को सेंस किया, डी को पता लगा कि ठीक है देयर इज नो कोई भी वो नहीं है, कोई भी फ्री है मेरा, मतलब कोई भी बिजी नहीं है मेरा कैरियर। उसने क्या किया, इट विल स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट, ये है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 AM पे जब शुरू किया, सो यहाँ पे उसने मैसेज भेजना शुरू किया, इट वाज समवॉट ओवर हियर, यहाँ पे था 10:59 पे, और 10:59 पे जब डी ने चेक किया कि क्या कैरियर फ्री है, उसको कैरियर फ्री मिला, उसने भी डेटा सेंड करना शुरू कर दिया, और 11 AM पे क्या हो गया, कोलिजन। इतना 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 फिगर समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ, आफ्टर कोलिजन अकर्स द कोलाइडेड सिग्नल स्टार्ट्स ट्रैवलिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि जब कोलिजन हुआ तो जो भी कोलाइडेड सिग्नल है वो कहाँ मूव करने लगेगा, अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में। द कोलाइडेड सिग्नल टेक्स 1 hour टू रीच द स्टेशन ए। वाई? यहाँ पे सपोज एक कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोलिजन हुआ, सो ये जो कोलाइडेड सिग्नल है ये वापस ए पे बैकवर्ड मूव करेगा, तो कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, यस और नो? अगर आप मैं इसको जूम करूं, देखो ये आपका कोलाइडेड, यहाँ पे कोलिजन हुआ, तो जो भी आपका कोलिजन का जो भी कोलाइडेड सिग्नल होगा, मतलब अब आपका कोलिजन हो गया तो आपका फ्रेम तो रहा नहीं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोलाइडेड सिग्नल। सो कोलाइडेड सिग्नल कहाँ मूव करेगा, बैकवर्ड, और बैकवर्ड जो मूव करेगा, अगर यहाँ से इफ ही विल ट्रैवल बैकवर्ड, सो वेयर ही विल गो, ही विल गो टू ए, ए है ना, और ए तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसे, अगर यहाँ पे कोलिजन हुआ है तो वो वापस जा रहा है ए पे, सो ए पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा उसे, 1 hour, 1 hour लगेगा, है ना? क्यों 1 hour क्यों लगेगा, क्योंकि प्रोपगेशन टाइम 1 hour है, मतलब कि इस जगह से इस जगह तक पहुंचने में जब 1 घंटा लग रहा है, सो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पहुंचने में भी 1 घंटा लगेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट दे आर सेइंग कि the collided signal takes 1 hour to reach the station A after collision has occurred. For station A to detect the colliding signal, it must be still transmitting the data. Obviously, A जो है अपना data forward transmit कर ही रहा होगा, है ना? So transmission delay of station A must be greater than equal to 1 hour plus 1 hour. That is greater than equal to 2 hours. कैसे 2 hours कैसे? 1 hour क्योंकि वो भेजा था A to D. इसके लिए 1 hour, और डी से वापस ए पे कोलिजन का वो इंफॉर्मेशन आना कि कोलिजन हुआ, इसके लिए भी कितना, 1 hour। सो टोटल टाइम कितना हो गया, 2 hours। तो अगर ए को ये डिटेक्ट करना है कि मेरा एक कोलिजन हो गया है, मेरा जो मैं डेटा सेंड करता हूँ उस पर कोलिजन हो गया, सो इट इज इक्वल टू 2 hours। सो ट्रांसमिशन डिले जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 hours। That is why transmission delay, because suppose अगर आप यहाँ पे देखो, अगर ये आपकी इमेज है, ठीक है, अगर ए जो है वो डेटा को ट्रांसमिट करना बंद कर दे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब कोलिजन हुआ, सो ए जो है अपना डेटा ट्रांसफर ऑलरेडी कर चुका था, सो क्या कभी ए को पता लग पाएगा कि यहाँ पे आपका कोलिजन हुआ था आगे, बिकॉज जो कोलाइडेड सिग्नल है वो तो ए तक ट्रैवल ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ से ट्रांसमिशन ऑलरेडी स्टॉप हो चुका है। बात समझ रहे हो आप लोग? नहीं समझ में आया मैं क्या क्या इसमें क्या लिखा है कि अगर मान लो यहाँ पे ए ने ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया, मतलब ए ने अपना पूरा फ्रेम ट्रांसमिट कर दिया, ए के अकॉर्डिंग उसका फ्रेम ट्रांसमिट हो चुका है, बट यहाँ पे हो गया कोलिजन, अब कोलाइडेड सिग्नल जो है वो मूव करेगा बैकवर्ड, तो वो बैकवर्ड कहाँ जाए, जो स्टेशन ट्रांसमिट कर रहा होगा वहीं पे तो जाएगा, राइट? और अगर ए ने भी ट्रांसमिशन स्टॉप कर दिया तो इसका मतलब कि ए भी ट्रांसमिट नहीं कर रहा, so वो कोलाइडेड सिग्नल हो जाएगा लॉस्ट। So this is what they're saying, for station A to detect the collided signal, it must be still transmitting the data.
सो दैट इज वाई जो ट्रांसमिशन डिले होना चाहिए कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए वो मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आवर्स। 2 आवर्स क्योंकि 1 आवर हमने प्रोपगेशन डिले का टाइम रखा है। So this is what will happen. That is why for detecting the collision, condition is TT, that is transmission delay greater than equal to 2 times your propagation delay. ये बात समझ में आ गई? Yes, ma'am. कोई डाउट है इसमें तो पूछो। No, ma'am. सबको क्लियर हो गया दोनों को? Yes, ma'am. So अब केस 1 क्या है? केस 1 है अगर कोई भी कोलाइडेड सिग्नल वापस नहीं आता है, इफ नो कोलाइडेड सिग्नल कम्स बैक ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। सो इसका मतलब कि कोई कोलिजन नहीं हुआ है और ट्रांसमिशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया। केस 2, अगर कोलाइडेड सिग्नल वापस आता है, अगर कोलाइडेड सिग्नल वापस आता है तो इसका मतलब कि कोलिजन कहीं हुआ है और आपका डेटा पैकेट ट्रांसमिट नहीं हुआ है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब कोलाइडेड सिग्नल वापस आ गया, ठीक है, ए के पास कोलिजन का सिग्नल वापस आ गया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा रिलीजिंग द जैम सिग्नल। जैम सिग्नल क्या होता है? इट इज अ 48 बिट सिग्नल। It is released by transmitting stations as soon as they detect a collision. It alerts the other stations to not to transmit their data immediately after the collision. Otherwise, there is a possibility of collision again with the same data packet. The frequency of jam signal is different than that of the frequency of data signals. This ensures that jam signal does not collide with the data signals undergone collision. मतलब कि अब क्या समझाना चाह रहे हूँ यहाँ पे? सपोज दिस इज योर स्टेशन ए, दिस इज योर स्टेशन बी, सी एंड डी, ठीक है, ए बी एंड सी एंड डी। अब व्हाट हैपेंड वाज यहाँ पे समवॉट ओवर हियर जब डी भी अपना डेटा सेंड कर रहा था और ए भी अपना डेटा सेंड कर रहा था, सो यहाँ पे कोलिजन हुआ, ठीक है। ये कोलिजन जब हुआ सो इट विल स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स। जब वो बैकवर्ड ट्रैवल हुआ कोलिजन, सो ए को पता लगा कि क्या हो गया है, कोलिजन हो गया। सो व्हाट विल हैपन, और डी को भी पता लगा कि कोलिजन हो गया। सो व्हाट विल हैपन इज बोथ ए एंड डी क्या भेजेंगे? वो भेजेंगे कोलिजन के लिए जैम सिग्नल। जैम सिग्नल बेसिकली मीन्स दैट ओके ये भेजा जाएगा बी और सी के लिए बेसिकली। क्यों? बिकॉज दे विल बी इन्फॉर्म्ड कि कोलिजन हो गया है, प्लीज डू नॉट सेंड योर डेटा। क्लियर हुई वाली चीज? Yes, ma'am. ठीक है। और जो आपका जैम सिग्नल है वो कितने बिट का सिग्नल है? 48 बिट का सिग्नल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ध्यान रखना। ये जैम सिग्नल क्लियर हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ जैम सिग्नल जो है वो हाई होगी डेटा सिग्नल के कंपैरिजन में। क्यों? जिससे कि वो कहीं कोलिजन, उनका कोई कोलिजन ना हो जाए डेटा सिग्नल्स के साथ, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, ma'am. फिर सेकंड हुआ, अब आपने जैम सिग्नल भेज दिया। अब आफ्टर द कोलिजन द ट्रांसमिटिंग स्टेशन वेट्स फॉर सम रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं बैक ऑफ टाइम। जैसे ही बैक ऑफ टाइम खत्म हुआ, इट ट्राइज ट्रांसमिटिंग द डेटा पैकेट अगेन। if again the collision occurs, then station again waits for some random back of time and then tries again. The station keeps trying until the back of time reaches its limit. After the limit is reached, station aborts the transmission. So if you see, ये clear है, ये visible है, तो मैं zoom कर देती हूँ इसे, यहाँ से देखो। ये आपका बेसिकली CSMA CD का फ्लो चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 टर्म्स यूज किए गए, K दैट इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, TP दैट इज मैक्सिमम प्रोपगेशन टाइम और TB दैट इज बैक ऑफ टाइम। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? स्टार्ट हुआ K इक्वल टू 0। K इक्वल टू 0 मीन्स कि अभी तक आपने कोई भी री अटेम्प्ट नहीं किया। अब आपने क्या अप्लाई किया? यू हैव अप्लाइड वन ऑफ द पर्सिस्टेंट मेथड्स। कोई सा भी पर्सिस्टेंट मेथड किसके लिए? ये चेक करने के लिए कि आपका जो चैनल है वो आइडल है या फ्री बिजी है, और अगर जो भी कंडीशन है उसके हिसाब से वर्क करने के लिए, ठीक है। आपने वो अप्लाई किया, उसके बाद ट्रांसमिशन या तो हो जाएगा या फिर कोलिजन डिटेक्ट किया जाएगा। अगर ट्रांसमिशन मतलब कोलिजन आपका डिटेक्ट नहीं हुआ है, सो मतलब आपका डेटा ट्रांसमिट हो गया और रिसीव भी हो गया। बट इफ कोलिजन इज डिटेक्टेड, इफ यस, देन व्हाट विल हैपन? फिर आप चेक करोगे कि आपने कोलिजन को डिटेक्ट किया कि नहीं, मतलब आपका ट्रांसमिशन नहीं हुआ। फिर आपने चेक किया कि कोलिजन डिटेक्ट हुआ कि नहीं। अगर कोलिजन डिटेक्ट नहीं हुआ तो मतलब कि ठीक है, सक्सेस। अगर कोलिजन डिटेक्ट हो गया तो व्हाट विल हैपन? यू विल सेंड अ जैमिंग सिग्नल।
जैम सिग्नल भेजते ही आपके जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? अब आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपने वेट किया, उसके बाद आपने दोबारा से अपना डेटा भेजा। सो दैट इज k इक्वल टू k प्लस 1। फिर चेक किया जाएगा कि क्या k जो है, जो आपने अटेम्प्ट की वैल्यू है, वो आपकी मैक्सिमम अटेम्प्ट की वैल्यू हो गई है कि नहीं। अगर मैक्सिमम वैल्यू हो गई है सो यू विल स्टॉप एंड यू विल अबॉर्ट। अगर मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, व्हाट यू विल डू, you will choose a number r, that is a random number between 0 to 2 to the power k minus 1. That will be your back off time, that is r into t, that is random number multiplier propagation time. उस टाइम तक वेट करने के बाद आप दोबारा से अपना वही प्रोसीजर को दोबारा फॉलो करोगे। ये चीज क्लियर हुई? Yes, ma'am. ठीक है। सो CSMA CD में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है जैमिंग सिग्नल। कोलिजन डिटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जैमिंग सिग्नल, की वो जैमिंग सिग्नल सेंड किया जाएगा टू अदर स्टेशंस कि प्लीज डू नॉट ट्रांसमिट द डेटा नाउ। तो आपकी जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है इन केस ऑफ योर जो आप बोलते हो दैट इज योर CSMA CD में, वो होता है TT अपॉन C इंटू 2 इंटू TP प्लस TT प्लस TP। अब कैसे आया फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ, जस्ट एक मिनट। सो टीटी तो आपका ट्रांसमिशन टाइम हो गया, ठीक है। टीटी अब जब आपको अगर ध्यान हो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, बेसिक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का, सबसे पहला फॉर्मूला वो क्या पढ़ा था, 1/2a के अलावा कुछ ध्यान है? 1 plus 2 into t upon tt, ma'am. नहीं, तो मैं बताती हूँ। सबसे स्टार्टिंग फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, जो था आपका दैट वाज यूजफुल टाइम अपॉन टोटल टाइम, यही पढ़ा था अगर ध्यान है। यूजफुल टाइम था हमारा ट्रांसमिशन टाइम अपॉन टोटल टाइम था हमारा TT, that is transmission time plus 2 times your propagation time। ध्यान में आया फॉर्मूला? Yes, ma'am. अगर आप जाओगे वापस अपने स्टॉप एंड वेट के टाइम पे तो आपको ध्यान में आएगा कि हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था एफिशिएंसी का, फिर यहाँ से हमने निकाला था जब हमने TT से डिवाइड की थी पूरी इक्वेशन को, फिर हमारा आया था 1/1 plus 2 TP by TT, और फिर यहाँ से आया था हमारा 1/1 plus 2a। ध्यान आया कुछ? Yes, ma'am. है ना, ऐसे पढ़ा था ना? Yes, ये ma'am. तो यही स्टार्टिंग था, यूजफुल टाइम हमारा TT का था, और टोटल टाइम हमारा था, पूरा टोटल टाइम हमें फ्रेम को ट्रांसफर करने में कितना लग रहा था, वो था TT प्लस 2 टाइम्स ऑफ TP कंसीडरिंग योर एक्नॉलेजमेंट एज वेल। ठीक है, सो ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली। सो TT तो आपने ये लिख दिया, TT आपका यही हो गया, फिर ये TT आपका यहाँ पे आ गया, TP अब आपका 2 TP है, राइट। 2 TP को आपने एक TP को ऐसे छोड़ दिया और एक TP को आपने यहाँ पे इसे ब्रेक करा। सो व्हाट विल हैपन इज, अगर आप इसको ध्यान दो, सो दिस इज बेसिकली जो यहाँ पे है आपके नंबर ऑफ कोलिजन्स, कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं इनटू 2 टाइम्स योर TP। So, ये आपका बेसिकली एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, इसको जब आप ब्रेकअप करोगे, इसका ब्रेक करोगे, सो दिस विल बी योर एफिशिएंसी, द फॉर्मूला ऑफ एफिशिएंसी। अब वैसे इसमें एक चीज और भी है, ये बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है, बट मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, ठीक है। इसका ध्यान रखना कि एफिशिएंसी केस CSMA CD के केस में अगर आपसे कभी फॉर्मूला पूछा जाए, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, इट इज इक्वल टू 1 plus 6.44 times A। अगर मान लो कभी वो आपसे दें, कभी भी वो आपको दें, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगर चलो मैं ट्राई करती हूँ आपको समझाने का कि ये कैसे आया। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू योर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप मैथ्स पढ़ते हो तो उसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, उससे रिलेटेड है। कैसे समझाऊं मैं आपको, लेट्स ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे, सपोज सबसे पहले हमें इस फॉर्मूले में हमें पता है कि दिस इज समथिंग C मतलब कि हमारे पास कोलिजन के स्लॉट्स कितने हैं,
ठीक है. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव द सी एंड वी हैव टू पुट आवर फॉर्मूला लाइक दिस. हमें इस टाइप का फॉर्मूला अपना चाहिए. तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास कितने स्टेशंस हैं? n स्टेशंस हैं. ठीक है. और n स्टेशंस में हर स्टेशन की प्रोबेबिलिटी है p. प्रोबेबिलिटी p मतलब कि विद प्रोबेबिलिटी p दे आर ट्राइंग टू सेंड द डेटा. ट्राइंग टू सेंड द डेटा विद प्रोबेबिलिटी p. ठीक है. ये चीज हमारी पहली हो गई. सेकेंड चीज है, अगर मैं चाहती हूं कि सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो जाए. सक्सेसफुल ट्रांसमिशन का मतलब कब होगा? सक्सेसफुल ट्रांसमिशन जब सिर्फ एक ही स्टेशन क्या कर रहा हो? सेंड कर रहा हो. राइट? यस मैम. है ना? सक्सेसफुल कब हो सकता है? सक्सेसफुल तभी होगा जब सिर्फ एक ही स्टेशन डेटा को सेंड कर रहा हो. सो उसका क्या, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या हो जाएगी अगर हमें निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? तो उसका फॉर्मूला है nc1 मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस p n माइनस 1. ये बेसिकली मैथ्स का टर्म है. ठीक है. सो अगर हमें सक्सेसफुल ट्रांसमिशन चाहिए तो हम, ये आपका फॉर्मूला है जो आप इम्प्लाई करते हो, nc1 प्लस p इंटू 1 माइनस p n माइनस 1. p रेज टू पावर 1 मतलब कि एक प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल की है, और 1 माइनस p n माइनस 1 मतलब कि p1 मतलब n एक स्टेशन है आउट ऑफ n स्टेशन जो p प्रोबेबिलिटी से डेटा को सेंड कर रहा है, और 1 माइनस p मतलब कि ऑब्वियसली जब अगर p प्रोबेबिलिटी सेंड करने की तो 1 माइनस p क्या हो गई? नॉट सेंड करने की हो गई डेटा. अगर किसी काम को करने की प्रोबेबिलिटी p है तो ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1 माइनस p. माइनस. है ना? और अगर एक स्टेशन जो है, अगर मुझे सक्सेसफुल ट्रांसमिशन चाहिए तो एक स्टेशन की प्रोबेबिलिटी है p, तो n माइनस 1 की कितनी हो गई? 1 माइनस p. ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम. ठीक है. सो इसके बाद क्या होता है कि जब हमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ठीक है, कि हमारा जो p सक्सेस है वो मैक्सिमम हो, सो उस केस में क्या करते हैं हम? डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू p. ठीक है. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा. डिफरेंशिएट जब करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू p, तो आपको मिलेगा p मैक्स, और वो होता है 1 माइनस 1 अपॉन n, n माइनस 1. ये बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा के किया है. ठीक है. तो ये अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं तो इट इज समवॉट इक्वल टू p मैक्स लिमिट टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन e. ठीक है. ऐसा कुछ थोड़ा रफली समझना, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. फिर जब e की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करते हो, सो यू विल गेट दिस थिंग दैट इज 1 अपॉन 6.44a. तो आपको क्या ध्यान रखना है? एक तो आपको ये ध्यान रखना है और एक आपको ये ध्यान रखना है. ठीक है. ये चीज हो जाएगी, तो ध्यान रख लोगे. कुछ डाउट है तो बताओ. आई ट्राई कि मैं क्लियर कर दूं आपका डाउट. पूछो. मैम ये दोनों फॉर्मूले एक ही चीज के? हाँ, ये आपके, ये एफिशिएंसी का बेसिकली, इसको ना जैसे मैं आपको ये बताया ना, पूरा इस मेथड को तोड़ मरोड़ के ये एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला. तो यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2a था, तो यहाँ पे 6.44 वैल्यू है 2 की जगह. यस. मैं थोड़े क्वेश्चंस देख रही हूँ. चलो क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं, सो लेट्स ट्राई टू डू द क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन है आपका, इन CSMA/CD, यहाँ पे आपको डायरेक्ट दी हुई है बैंडविड्थ. अब आपको पता है ना कि बैंडविड्थ कैसे पता लगेगी? बैंडविड्थ की यूनिट से पता लग जाएगा. अगर mbps है मतलब बिट्स पर सेकंड करके है तो वो बैंडविड्थ है, ये ध्यान रखना. सो ये हो गया आपका 200 मीटर. v हो गया आपका 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो आपको कैलकुलेट करना है मिनिमम फ्रेम साइज इन CSMA/CD. करो. तो मैं आपको बस एक हिंट दे देती हूँ, वही यूज करना है. ट्रांसमिशन टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स योर प्रोपगेशन टाइम. अब बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर.
हो गया? ट्रांसमिशन टाइम बेसिकली होता है फ्रेम साइज अपॉन बैंडविड्थ इक्वल टू 2 टाइम्स प्रोपगेशन टाइम, डिस्टेंस या फिर लेंथ अपॉन v, दैट इज स्पीड। फ्रेम साइज कैलकुलेट करना है आपको। अब बैंडविड्थ कितनी है? 10 Mbps। 10 Mbps कितना हो गया? 10⁻⁶ मैम। 6 हुआ? यस मैम। हाँ, सो 10 into 10⁻⁶ इक्वल टू 2 into L कितना है आपका? 200 मीटर। तो 200 मीटर, ये मीटर में है और ये मीटर पर सेकंड में है, सो हम चेंज नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रहने देंगे। और v दैट इज 2 into 10⁸ सो 2 से 2 कैंसिल हो गया। यस मैम। ठीक है, फ्रेम साइज आपका हो गया 200 into 10⁻⁷ लिख सकती हूँ मैं से 6 + 1। ये चलो ऐसे ऐसे रहने दो, 7 ही लिख रही, अलग ही लिख देती हूँ। 10 into 10⁻⁶ into या अपॉन 10⁸, अपॉन 10⁸, राइट? इतना क्लियर है? यस मैम। So, अब क्या होगा? Now what you will do? अब you will try to write it in form of 10⁻². So 2 into ये कितने पावर हो गए? 10⁻², 9 मैम। plus 1 plus 6 minus 8। ये चीज क्लियर हो गई? यस मैम। So 6, 7, 8, 9. So 2 into 10⁻⁹ minus 8. That is 2 into 10⁻⁴ that is 20। अब इसकी यूनिट क्या होगी? ये क्या है आपका? मिलियन बिट्स पर सेकेंड, बिट्स में है ये आपकी, तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी? तो आपका फ्रेम साइज कितना हो गया? 20 बिट्स। अब क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, सो इसको आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ये वाली चीज ध्यान रखनी है कि CSMA CD जहां पे भी आए हमें डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, यस मैम। सो बाकी क्वेश्चंस अभी मेरे पास एक ही क्वेश्चन है ये वाला। बाकी आई सर्च, फिर मैं आपको भेजूंगी, नहीं तो आप ही अपने आप से ढूंढ के CSMA CD के क्वेश्चंस ट्राई करना। कल हम पढ़ेंगे CSMA CA। ठीक है, CSMA CA हम पढ़ेंगे, एट कोलिजन अवॉइडेंस। तो पहले से एक बार थोड़ा सा पढ़ के आना अगर आपको लग रहा है, और इसका भी रिवीजन कर लेना। ठीक है, मैं आपको ये स्लाइड आपको भेज दूंगी। एनीथिंग एल्स? कोई डाउट? किसी को कुछ डाउट है? नो मैम। मैम तो आज आपकी शाम को वही रिसर्च की क्लास होगी, सो 6 o'clock। ठीक है, यस मैम। सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड टुमारो सेम टाइम पे आपकी क्लास है, एंड कोई भी डाउट हो सो मैसेज करके पूछ लेना। ओके, यस मैम। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू मैम। थैंक यू।